Right, good morning everyone. I hope everybody is fit and fine at their places, taking good care of their health and doing studies also. Alright, so we were doing exercise 6.2, question number 1 and 2 we have discussed. Now today we will be discussing question number 3. So just look here, exercise 6.2, question number 3 we are going to discuss. So just have a look here what is there in this question. Now we have got this diagram AB, now CD, then we have this perpendicular here, and then we have one G. Now what is given in this question? This is E, this is F. What is given in this question? AB is parallel to CD. So first we will write given AB is parallel to CD. Now second part, EF is perpendicular to CD. EF is perpendicular to CD means this is 90 degree, right? Now we need to find angle AGE, then angle GEF, and we have angle FGE. This we need to find, okay? Alright, so how we are going to do this? Just have a look here. Dekho, AB is parallel to CD, right? And EF is perpendicular to CD. This is given to us. And one more thing I think it's given in the question. It is angle GED is equals to, this is also given, okay? Angle GED, this angle is given to you, which is 126 degree, right? Now, if I talk about angle GED, which angle will be GED? Between the rays GE and ED. So GE and ED, which angle? This is the angle. So this is GED. ये आपको कितना दिया हुआ है? This is 126 degree. Now हमको AGE निकालना है सबसे पहले. So this is 126 degree. आपको find out करना है AGE this angle. So just look here how we gonna do it. Just look here class, these two lines are parallel और अगर हम इसको ट्रांसवर्सल, this is our transversal EG, तो देखो मैंने बताया था तुम लोगों को दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, इस रिन्यू पास ये कट करिए, इंटरसेक्ट करिए, यानी एक्सटेंड करोगे तो इसको कट करती हुई जाएगी, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते थे? डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली हियर AGE तो GED का क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है. इट मींस एंगल AGE will be equals to angle GED. AGE is equals to GED. So angle AGE will also be equals to 126 degree, and reason will be alternate interior angles. Right. Now next GEF. Alright class. GEF you need to find. It's very easy. ये पूरा 126 है, इतना सा 90 है. इस 126 में से अगर आप ये 90 हटा देते हो तो ये वाला एंगल बचेगा, which is GEF, right? So angle GEF, देखो GED ये पूरा एंगल है, अंडरस्टूड? हमको सिर्फ GEF चाहिए. अगर हमको GEF चाहिए तो उसमें से हम ये 90 डिग्री हटा देते हैं तो GEF बचेगा. देखो ये वाला एंगल बचा GEF. So GEF is what? GEF is 126 minus 90, which is what? Which is 36 degree. Right? GEF निकला. Now, what we need to find? We need to find FGE. FGE. This we need to find. अभी अभी तुमने निकाला था AGE. AGE is what? 126. अभी देखो तो this is a straight line. ये हमारा linear pair हो जाएगा. So angle, just look here. So you will write angle FGE, okay, angle FGE plus angle AGE is equals to 180 degree linear pair. FGE plus AGE is equals to 180 degree linear pair. Now just look here, FGE we need to find and AGE is what? 126 degree. So you will get angle FGE is equals to 180 minus 126 degree, which is 10 minus 6, 4, 7 minus 2, 54 degree. I hope
everybody is very much clear with the concept. बेटा this is very much important while doing questions related to lines and angles कि आपके concepts बिल्कुल clear होने चाहिए. Understood? अगर आपके concepts clear नहीं हैं you won't be able to do the questions well. अगर अभी आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको concept clear नहीं है next time you won't be able to do this question. Right? Okay. So now moving on to next part. Next question. बहुत easy सा question है, बस वो डराने के लिए थोड़ा सा ऐसा डायग्राम दे दिया. So question number 4. Now question number 4 is what? Question number 4 is, it's given, diagram is given to you. आपको hint देखने की जरूरत नहीं है. Okay? Just look here. F, G, E, I'm sorry, this is the diagram given to you. This is E, Q, R, S. This is 130 degree given to you, and this is T. Given PQ is parallel to ST. Angle PQR is 110 degree and angle RST is equals to 130 degree. To find what? To find angle QRS. That's what we need to do. So how will we do this? देखो क्लास, आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है PQ is parallel to ST. आप हिंट नहीं देखोगे. If you will see hint, आपको कभी सोल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में कभी भी हिंट नहीं दिया होता है. सो इट्स बेटर यू ट्राई टू डू द क्वेश्चन बाय योर ओन. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जस्ट डू इट. हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है वी आर गोइंग टू यूज दैट. राइट, सो जस्ट लुक हियर. देखो PQ इज पैरेलल टू ST. आप इसको एक्सटेंड कर दोगे ना, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी पैरेलल. कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सटेंड कर दो. हम क्या कर रहे हैं, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. एक्सटेंड PQ टू, कहाँ तक एक्सटेंड करना चाहते हो? सपोज S तक एक्सटेंड कर, I'm sorry, W तक एक्सटेंड कर रहे हैं और इसको U नाम दे रहे हैं. अंडरस्टूड? PQ टू W. अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें. आपने कुछ नहीं किया, जस्ट रिमेंबर व्हाट यू नीड टू डू. आपने सिर्फ PQ को एक्सटेंड किया है. ये इसकी पैरेलल दी हुई थी, PQ ST के पैरेलल लगनी तो चाहिए, पैरेलल है. एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड करोगे तो भी पैरेलल रहेगी. अब तुमको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट विच एंगल. यू जस्ट नीड टू फाइंड QRS. ये वाला एंगल निकालना है. सबसे पहले PQR, ये जो एंगल आपको दिया हुआ है दिस इज गिवन टू यू 110. चलो स्टार्ट करते हैं. क्लास में इसकी नेमिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा इसमें. इसको मैं x अज्यूम कर रही हूँ. क्या आप इस x एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स यस. सो जस्ट लुक हियर. सॉल्यूशन ये लीनियर पेयर है ना, स्ट्रेट लाइन है. सो x प्लस 110 इज 180 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री. देखो x तो हमको 70 मिल गया है. बेटा आपको यूज़ करना है, आप जो भी वेरिएबल्स अज्यूम करते हो एंगल्स को आप अपने डायग्राम में भी शो करो. बिकॉज जो भी whenever somebody will check your answer sheet, how he or she will come to know कि आपने x किसको अज्यूम किया है. राइट, सो इट्स बेटर दैट you know just write whatever you are assuming in your diagram also. Okay, you just need to represent in diagram also whatever you are writing. So just look here now next part. अब ये तो हमने x निकाला, बट हमसे तो x पूछा ही नहीं था. अंडरस्टूड? हमसे तो x पूछा ही नहीं था. सो इट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग. सो जस्ट लुक हियर व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर नाउ. ये तो x की वैल्यू निकली. अब अगर मैं इस एंगल को y अज्यूम करती हूँ तो दिस इज ऑल्सो y. वर्टिकली अपोजिट एंगल है. क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हो? यस ऑफ कोर्स, दे आर कोइंफिनिट एंगल्स. So y plus 130 degree
is equals to 180 degree. Angles on same side of these two lines are parallel. Look here, these two lines are parallel. और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सो y is equals to 180 minus 130 which is 50 degree. Look here, हमको x की वैल्यू मिली 70 डिग्री, y की वैल्यू मिली 50 डिग्री. ये एंगल निकालना है. एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल है बेटा, दिस इज अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. सो x plus y plus this angle is what? QRS. इनका सम तो 180 डिग्री होगा. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. नाउ x is what? 70, y is 50 and angle QRS is equals to 180 degree. So 70 plus 50 will be what? 120 plus angle QRS is 180, then angle QRS is 180 minus 120 which is 60 degree. Understood? I hope everybody is clear with the concept now. Right? Now moving on to next part. Now we have question number 5. It's also very easy question. Now what is question number 5 here? It is question number 5 is saying, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है AB and we have one more line which is CD. Now we have a triangle PQR. ठीक है, and this is B. All right, so what is given in the question first? Given AB is parallel to CD, first thing. Then angle APQ 50 degree. Angle PRD 127 degree. You need to find x and y. Okay. We need to find x and y. अब हमारे x and y है कहाँ? Just look here. This is our x, this is our y, and this angle APQ is given to you 50 degree, and we have this is 127 degree. All right. So how we are going to start? आप इस क्वेश्चन को कैसे भी स्टार्ट करते हो, एज यू विश, आपकी मर्जी है, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखो, सबसे पहले ये दो पैरेलल लाइंस है, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल. पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल हो गई. ऑल्टरनेट एंगल्स तो क्या? डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स. ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा. सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 50 डिग्री. सो जस्ट लुक हियर, x इज इक्वल्स टू होगा हमारा 50 डिग्री. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? चलो, x यू हैव गॉट. आप इस एंगल आर की वैल्यू निकाल सकते हो लीनियर वे से. देखो, बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट जो आपको समझ आए ऑलवेज ट्राई विद दैट मेथड. ओके, इफ योर मेथड इज करेक्ट, इफ योर कॉन्सेप्ट इज करेक्ट, यू विल गेट द आंसर. ओके, अभी यहाँ लीनियर पे वी कैन अप्लाई, सो वी विल अप्लाई. सो एंगल PRQ, आई एम सॉरी, दिस PRQ कैसे निकालोगे? इन दोनों का सम 180 है, तो PRQ हो जाएगा 180 minus 127 degree. So this is 10 minus 7 3. अच्छा, आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अ ट्राइंगल. ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. हालांकि इस चैप्टर में हमारे पास इसका प्रूफ भी है, दैट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट एक्सरसाइज. बट आई थिंक एवरीबडी नोज ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. सो दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ओके, बिना इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी ये सोल्यूशन हो जाएगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? सो नाउ जस्ट लुक हियर, 180 minus 27, 10 minus 7 3, 7 minus 2 5. So this is 53 degree. अब हमको ये तो 53 डिग्री. अंडरस्टूड? आपने x भी निकाल दिया 50 डिग्री.
क्या आप नहीं निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. सो इन ट्राइंगल PQR y plus x plus 53. X is what? X we have already calculated, so y plus 50, or you can write like this also. X plus angle PRQ is equals to 180 degree. This is angle sum property for a triangle. Now y we need to find. X we have already calculated 50. PRQ is what? 53. Now will you be able to find out? Yes, of course we can find out. So y plus 103 is 180 and y will be 180 degree minus 103, which is 77. I hope everybody is very much clear with the concept. Okay, so this is going to be 1, this is 77 degree. So class, I just want every one of you to try these questions by your own, first thing. And second is what? You need to do all the solutions in your fair notebook also. Okay? आप वीडियो जब देखते हो तो इट्स नॉट लाइक कि आपको वीडियो देखा और आपको समझ आ जाएगा. आप यू ऑलवेज ट्राई टू डू क्वेश्चन बाय योर ओन. अगर आपको कोई दिक्कत आती है वीडियो ऑन करो, स्टिल यू कैन थोड़ा सा देखा एंड देन यू कैन डू योर ओन सोल्यूशन. फिर पॉज कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो. यू शुड डू लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक कि आप बैठ गए और आपने वीडियो देखा एंड यू विल बी एबल टू डू द सोल्यूशंस. नो, मैथ्स इज ऑलवेज लर्निंग बाय डूइंग, राइट? सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई क्वेश्चंस बाय योर ओन. नहीं आता है तब आपको वीडियो देखिए. फिर भी स्टिल कॉन्सेप्ट के लिए आप एक बार वीडियो देख के आप सिर्फ देखो और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को वापस भी सॉल्व करो, राइट? सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज आई एम डूइंग. Every video I keep on saying this thing, maths is learning by doing, and actually it is a fact. अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ देख के मैथ सीख जाओगे तो नो, it's not correct, right? It's not true. Now just look here, PQ and RS. PQ and then we have RS are two mirrors placed parallel to each other. These are mirrors. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, सिंबल है. आप मिरर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. पैरेलल है तो यानी हमको सबसे पहले गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS. नाउ एन इंसिडेंट रे AB, ये लो, दिस इज आवर इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B एंड द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होके ये रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD. देखो ये रे यहाँ पे इट इज रे ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट होती है और फिर अगेन इट विल मूव टुवर्ड्स दिस CD. हाँ, दिस इज व्हाट? इंसिडेंट रे. दिस इज AB इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज CD, रिफ्लेक्टेड रे. नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD. बहुत इजी है. हमको क्या प्रूव करना है? AB पैरेलल टू CD. सबसे पहले अगर हमको AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है तो कैसे भी अगर हम ये एंगल इक्वल प्रूव कर दें, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें, देन वी कैन से दैट दीस टू लाइंस आर पैरेलल, राइट? हमने पढ़ा था अगर कोई दो लाइंस हमको गिवन है एंड इफ alternate angles are equal, then lines will be parallel. If sum of co-interior angles is 180 degree, then also lines will be parallel. If suppose if I say corresponding angles are equal, then also lines are parallel. But इस केस में अगर हम किसी भी तरीके से ये alternate angles, एंगल A, B, C और B, C, D को इक्वल प्रूव कर दें तो हम बोल देंगे AB is parallel to CD. So we will work towards that. हम इनको alternate angles को इक्वल प्रूव करेंगे. इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. आपको पता है ना नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर. BX and CY. So construction, draw BX perpendicular to PQ and this CY perpendicular to this.
ड्रॉ की, तो ये वाला जो होगा इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैंने नेम दिया है I1 एंड R1, I2 और R2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यू रिमेंबर दैट? सो जस्ट लुक हियर, ये I1 विल बी इक्वल्स टू R1 होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। Similarly, this I2 is equals to R2, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। बट हमें इससे क्या करना है, हमको तो चाहिए कि I1 प्लस R1 मतलब ये पूरा एंगल इक्वल आ जाए I2 R2 के। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? जस्ट लुक हियर क्लास। अगर मैं बात करूँ दो पैरेलल लाइंस की और उनमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, डू यू थिंक दीज टू परपेंडिकुलर्स विल बी पैरेलल? ऑफ कोर्स दीज विल बी पैरेलल। क्यों? ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर। और देखो ज़रा, ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स जब हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दो पैरेलल लाइंस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा दे विल ऑलवेज बी पैरेलल। क्यों होंगे? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, इसका मतलब लाइंस विल बी पैरेलल, ये 90 है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी पैरेलल होंगे। यानी मैं कह सकती हूँ कि BX इज पैरेलल टू CY। ये BX और ये CY पैरेलल है क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब तो ऑल्टरनेट एंगल्स फिर से इक्वल होगी। भाई ये दो लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब व्हाट? R1 इज इक्वल्स टू I2। ओके, नाउ जस्ट लुक हियर व्हाट वी नीड टू। Now what? अब हमको प्रूव करना है कि I1 plus R1 is equals to I2 plus R2। Of course I1 plus R1 will be this angle and I2 plus R2 is this angle। तो कैसे करेंगे? पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग 1 and 2, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया, राइट में राइट ऐड किया, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड किया, राइट में राइट ऐड किया। पर मुझे I1 I2 नहीं चाहिए, मुझे I1 के साथ R1 ही चाहिए। ओके, आई एम सो सॉरी, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू व्हाट? R1 प्लस R2। ना, मुझे तो I1 R1 चाहिए। यहाँ देखो, आप I2 को क्या लिख सकते हो? R1, और मुझे I1 के साथ। सो यूजिंग 3 मैंने I1 को, मुझे ज़रूरत है I1 की, इसलिए मैंने इसको ऐसा ही रखा। और इस I2 की जगह मैंने क्या पुट किया बेटा? R1। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? I2 और R2 चाहिए, पर मिल क्या रहा है? R1 और R2। जस्ट तो क्या I2 और R2 चाहिए, यानी इस R2 की तो मुझे ज़रूरत है इस वाली इक्वेशन में। प्लस की जगह प्लस, इस R1 की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ? R1 की जगह I2 पुट कर सकती हूँ। जस्ट तो क्या मुझे क्या मिल गया? I1 प्लस R1। I1 प्लस R1 इज व्हाट? एंगल ABC। एंड I2 प्लस R2 इज व्हाट? एंगल BCD। ये देखो, हमने तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंड अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। सो AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस सॉल्यूशन। ऑलराइट, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I want every one of you to try all these questions by your own. Doubt है तो हम live class में you can always ask. We will discuss. Alright, so that's it for now. Thank you so much. Bye bye.